Welcome to the channel, the milestone classes. So today we are going to do the unit number 2 from 18th century literature of DOSOL, semester 2nd. The name of the novel is Gulliver's Travel by Jonathan Swift. The timeline, the birth timeline of Jonathan Swift is from 1667 to 1745. Now let's talk about some few things about Jonathan Swift that needs to be right as a summary of your examination, as it is a one shot, not a detailed novel I am going to explain. So Jonathan Swift जो थे वो he was a very greatest satirical writer. Satirical मतलब जो criticize करते हैं society को, human weaknesses को through a very humorous witty way. So here Jonathan Swift does that, and he was very greatest writer among all the times. So मेजर राइटर ऑफ अगस्तियन एज, जब अगस्तियन किंग जो थे वो रूल कर रहे थे, ही वॉज अ वेरी मेजर राइटर ऑफ दैट टाइम एंड ही क्रिटिसाइज द सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स एज ही कुड डू फ्रॉम हिज satirical writings. He is very much famous for the Gulliver's Travel. Along with that, he is famous for a modest proposal. He is famous for. Now, about the story, about the novel, it includes four voyages. So that what it includes. So about the stories had been published in 1726, and it is very famous satirical novel. The main character of this story, जो इसका main character है वो है Lemuel Gulliver, and that particular character is a surgeon, a sea traveler, that narrates his adventure traveling in a different imaginary lands. That explains his adventures in very different imaginary lands that could be in the world, but not actually, because वो बहुत imaginary lands के बारे में बात करते हैं in his four voyages. And the nature of the work, or the nature of his novel is by Swift, is based on traveling, adventures, satirical. This word is going to repeat a lot. These four words are going to repeat very much. So political criticism and social criticism had been shown through these imaginary lands, and how the travels, Gulliver is going to work as a mirror for the society, we can see. So coming to the novel, has four voyages, and voyages means very simple thing, that means a long journey. Number one voyages means to be a Lilliput, second voyages is being to be Brobdingnag, and third one is Lilliputta, and fourth one is how Hemans. There could be a problem of pronunciation here, but how it's written is correctly. So coming to the first voyages is. So first voyages is Lilliput, a country with the tiny people about 6 inches tall. They are very small people in this particular country. जहाँ पर गुलिवर जाते हैं, and his ship is wrecked. That means that is totally damaged. And यहाँ पर आयरनी क्या है, जो टाइनी पीपल है वो गुलिवर को जो है कैच कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं. ग्रेजुअली जो गुलिवर है उनके साथ रह के उनका ट्रस्ट गेन करता है, उनके साथ रहता है. ऑल दो यहाँ पर जो भी है ये सब इमेजिनरी है, देयर इज़ नथिंग रियल. सो व्हाट पॉलिटिकल सटायर हेयर स्विफ्ट वांट्स टू टेल अस. स्विफ्ट यूजेस लिलिपुट टू क्रिटिसाइज ब्रिटिश पॉलिटिक्स बाय बिग इंडियंस एंड लिटिल इंडियंस. हेयर इज़ नॉट आई, इट्स ई. सो यहाँ पे पॉलिटिकल सटायर यही है कि यहाँ पर जो है, यहाँ पे एग की बात होगी. अगर बिग इंडियंस का मतलब होता है जब किसी भी एग को जो है बिग एंड से ब्रोक किया जाए, एंड लिटिल एंडियंस का मतलब होता है जब भी एग को स्मॉल एंड से ब्रोक किया जाए. यहाँ पे दो तरीके के लोग हैं, जो बिग एंड से ब्रोक करते हैं, और कुछ होते हैं जो स्मॉल एंड से ब्रोक करते हैं. और इन दोनों के बीच में जो है बहुत वेलरी चल रही होती है. सो हेयर स्विफ्ट वांट्स टू टेल्स कि यहाँ पर जो है, it seems to be a very useless and meaningless fight over. And here it's not about egg, it's about the political and religious conflicts that are going in the British
things, and that conflicts had been represented through this thing by Swift. तो यहाँ पे ये पॉलिटिकल सटायर लिलीपुट के अंदर देखने को मिलता है कि दो लोग जो हैं ऐसे ग्रुप्स में डिवाइडेड है, एंड दे आर जस्ट मीनिंगलेसली फाइटिंग ओवर दिस अननेसेसरी थिंग. एंड हेयर एक्चुअल मतलब क्या है, क्या बताना चाहते हैं कि ब्रिटिश में जो लोग हैं वो पॉलिटिकली और रिलीजियसली कॉन्फ्लिक्ट्स पे जो है मीनिंगलेसली अननेसेसरीली लड़ते हैं. सो ये चीज़ यहाँ पर स्विफ्ट ने अपने इस नावल के थ्रू, इस पर्टिकुलर लिलीपुट वॉयेज के थ्रू बताने की कोशिश करी है. लो हील्स के बारे में बार बार बात की जाएगी लिलीपुट के अंदर. सो दैट इज़ ऑब्वियसली अबाउट रिप्रेजेंटिंग द पॉलिटिकल पार्टीज़ इन इंग्लैंड. यहाँ पे हाई हील्स यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टी जो है पावर में होगी, लो हील्स जो अभी अपोजिशन में होंगी. सो दीज डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ हैड बीन रिप्रेजेंटेड एज हाई हील्स एंड लो हील्स इन इंग्लैंड, एंड स्विफ्ट मॉक दीज राइवलरीज अगेन. यहाँ पे मॉक करते हैं, वो उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं ना सैटारिकल वे. नाउ व्हाट इज़ द फाइनल वॉयेज ऑफ लिलीपुट. लिलीपुट में लास्टली होता क्या है? लिलीपुट में ये होता है कि गुलिवर्स जो है वॉर के अंदर, यही इसी वॉर के अंदर या जो भी वॉर होती है उसके अंदर हेल्प करते हैं. लेटर कोर्ट पॉलिटिक्स के कारण, लेटर कोर्ट पॉलिटिक्स के कारण जो गुलिवर होता है उसी के अगेंस्ट सब खड़े हो जाते हैं, और लास्ट में होता क्या है, ही नीड्स टू एस्केप एंड रिटर्न टू देयर होम. तो उसके लिए तो काफ़ी हैप्पी एंडिंग थी, थोड़ी क्योटिक एंडिंग थी, बट येट इट टेल्स अबाउट हाउ नॉर्मल पीपल जो ट्रस्ट बिल्ड कर लेते हैं, या जो लोग पॉलिटिक्स में आकर पीपल डू एक्चुअली वर्क फॉर इट, और कभी कभी जब वो अच्छा काम करने लगते हैं तो जो सब लोग होते हैं वो उसके अगेंस्ट आ ही जाते हैं. how it tells about that thing. So next is Brobdingnag. Sorry if it's pronounced wrong. So Brobdingnag is the second voyage that had been told in his novel. सो अब जैसे लिलीपुट में सारे लोग छोटे थे, यहाँ पर सब जो है इट्स अ लैंड ऑफ जाइंट्स, दैट इज़ अ लैंड ऑफ टाइनी पीपल, राइट. इट इज़ अ लैंड ऑफ जाइंट्स, एंड गुलिवर्स जो है यहाँ पर बहुत छोटा बन जाता है कंपेयर टू एवरीवन. वहाँ पे जहाँ वो इतना बड़ा था फिर भी लोगों ने उसको कैप्चर कर लिया था, और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो है वो बहुत ही ज़्यादा कंपेयर टू एवरीवन ही इज़ वेरी स्मॉल. सो गुलिवर ट्रीटेड एज curiosity, mock and displayed before the crowd and meets king. सो यहाँ पे गुलिवर के साथ होता क्या है, लोग यहाँ पर उसको कैप्चर तो नहीं करते हैं, बट येट पीपल मॉक हिम कि ये इतना छोटा क्यों है, ये चीटी जैसा लग रहा है. पीपल डू मॉक हेयर, जो भी जाइंट्स होते सब उसको मॉक करते हैं, और एक्चुअली गुलिवर भी बहुत डर जाता है, और जो है लोग उसको क्राउड्स के अंदर बहुत सेंटर में रखते हैं, उसको क्राउड के अंदर डिस्प्ले करते हैं, एंड ही एक्चुअली मीट्स द किंग. Sorry for the disturbance. They actually meets the king, Gulliver, and king was very wise, practical, and गुलिवर जो है यूरोपियन पॉलिटिक्स, वॉर्स, वेपन्स के बारे में बताता है किंग को. जो ब्रोबडिंगनैग का जो किंग है उनको जो है वो इसके बारे में बताते हैं, बट होता क्या है लास्ट में, वो जो किंग है ये सब चीज़ों को, यूरोपियन पॉलिटिक्स को, वॉर्स को, वेपन्स को, सबको क्रिटिसाइज़ कर देते हैं. सो स्विफ्ट यहाँ पर जो है ब्रोबडिंगनैग को क्यों यूज़ करते हैं, इस वॉयेज को क्यों यूज़ करा स्विफ्ट ने यहाँ पर, इट इज़ टू एक्सपोज द करप्शन, पॉलिटिकल ग्रीड, वायलेंस एंड ह्यूमन प्राइड, कि किस तरीके से लोग जो है करप्शन के अकॉर्डिंग काम करते हैं, पॉलिटिकल ग्रीड है लोगों के अंदर, सत्ता में आने की चाह है, और हाउ द पीपल इज़ वेरी वायलेंट, एंड हाउ द किंग्स एंड एम्पेयर्स आर वेरी प्राइड ऑफ देयर सेल्फ. हालांकि वो बहुत वाइज थे, विजडम था उनके अंदर, मॉरल थे किंग यहाँ के, लेकिन स्टिल ही हैज़ ह्यूमन प्राइड. हाउ ह्यूमन, अच्छा ह्यूमन प्राइड सब में ही था वहाँ पे, क्यों, क्योंकि गुलिवर वहाँ पर बहुत छोटे लग रहे थे और बाकी सब जाइंट थे, तो दे हैव वेरी प्राइड कि अरे ये तो कितना छोटा सा है, बट येट इट मेक एवरी वन अट्रैक्टेड टूवर्ड्स हिम बिकॉज ऑब्वियसली ही इज़ वेरी स्मॉल देयर.
what are the central themes of these two voyages. अगर हम ध्यान से देखें तो एक जो कॉमन थीम जो है मैं शुरुआत से बोलती हुई आ रही हूँ, दैट इज़ सटायर. सटायर इट इज़ अ ह्यूमर टू क्रिटिसाइज. लिलीपुट में हो या ब्रॉमडिंग-डैंग में हो, सब में ही जो है इन्होंने सटायर का यूज़ किया है स्विफ्ट ने. हेयर इज़ अ वेरी ह्यूमन प्राइड. पावर इज़ रिलेटिव. देखो जहाँ पर लिलीपुट के अंदर गुलिवर बहुत बड़ा था, वहीं पर जहाँ पे वो स्ट्रॉन्ग फील कर रहा था, बट वहीं पर जो है जब वो ब्रॉमडिंग-डैंग में गया तब वो अपने आप को सबसे छोटा पा रहा था. सो पावर इज़ ऑलवेज रिलेटिव. ऐसा नहीं है आज आप स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हो तो यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, हो सकता है आप कल वीक भी फील करो. सो यू शुड बी इन योर कंट्रोल, इन योर ह्यूमन प्राइड. नेक्स्ट इज़ पॉलिटिक्स. बार बार जो है यूरोपियन पॉलिटिक्स हो या ब्रिटिश पॉलिटिक्स हो या वो हाई हील्स लो हील्स हो, स्विफ्ट ने इनको बहुत अच्छे से जो है पॉलिटिक्स को जो है क्रिटिसाइज़ करते हुए दिखाया है. सेंट्रल थीम है, फोर्थ सेंट्रल थीम है, वो है ह्यूमन नेचर की. ये एक नावल जो है, पूरी नावल 4 वॉयजेस के अंदर जॉन स्विफ्ट जो है क्वेश्चन करते हैं दैट इज़ एक्चुअली वेरी मच रिलेटिव टूवर्ड्स आर रिलीजियस क्रिटिसिज्म, टूवर्ड्स आर सोसाइटल क्रिटिसिज्म, पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म, everything, and human pride too, right? That whether humans are truly rational or civilized. क्या देखो, जब वो बड़ी जगह, जब गुलिवर जो है जाइंट बनकर गए थे लिलीपुट के अंदर, तब भी लोगों ने उसके साथ कुछ अच्छा खास ट्रीट नहीं किया और उसको लास्ट में इस्केप करना पड़ गया वहाँ से. वेयर एज जब वो ब्रॉमडिंग-डैंग में गया तब वहाँ पर भी किंग ने जो है क्रिटिसाइज वायलेंस और पॉलिटिकल ग्रीड गुलिवर को देखने को मिला जब वो छोटे भी थे. सो क्या हम ह्यूमंस एक्चुअली सिविलाइज्ड हैं, रेशनल है, या फिर हम बस अपने से छोटे को देखकर या फिर जो हमसे थोड़ा ऑड वन आउट दिखता है उसके साथ हम अपना जो नेचर है, बिहेवियर है, वो चेंज कर लेते हैं. सो इट पुट अप्स दिस वेरी important question. So you can write in your answers too, right? Whether humans are truly rational or civilized. Fifth central theme is relatively of perspective. Again ये काफ़ी सिमिलर है ह्यूमन प्राइड या पावर इस रिलेटिव के, कि चेंजिंग पर्सपेक्टिव. कि जब वो बड़ा हुआ तो वो स्ट्रॉन्ग फील कर रहा था, जब वो छोटा हुआ तो थोड़ा वीक फील कर रहा था. एंड पीपल ने उसको हर बारी पर्सपेक्टिव ऑड वन आउट के पर्सपेक्टिव से ही देखा. उसका पर्सपेक्टिव पहले ये था कि किस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं, किस तरीके से लोग लड़ रहे हैं आपस में, और नेक्स्ट टाइम भी उसका यही सेम पर्सपेक्टिव था. सो उनके पर्सपेक्टिव में वो बहुत लाइक अजीब आदमी था, बट उसके लिए तो वो नॉर्मल था, राइट? सो इट इज़ अ रिलेटिवली चेंज ऑफ पर्सपेक्टिव और रिलेटिव ऑफ पर्सपेक्टिव. Character analysis of this particular novel. The मेन कैरेक्टर इज़ लैमुएल गुलिवर, जो सेंट्रल कैरेक्टर हैं यहाँ पर. स्विफ्ट जो है इस कैरेक्टर को यूज़ करते हैं जो कमेंट करते हैं थ्रू द सोसाइटी, ऑन दी सोसाइटी एंड दी ह्यूमैनिटी, हाउ द people actually how the real people are in the society is. That is very satirical way. The Gulliver जो as a character is very curious, observant and अपने experiences, travel experiences बहुत fantasy के साथ दिखाते हैं. Next character is Emperor of Lilliput. He is very ambitious, political rulers included, very political ruler. Yet लास्ट में उनको जो एस्केप करना पड़ ही जाता है, गुलिवर को वहाँ से निकलना पड़ ही जाता है, बिकॉज अगेन जो अच्छे लोग होते हैं उनको ज़्यादा टाइम तक नहीं टिकने देते हैं. दैट इज़ द रियलिटी ऑफ आवर सोसाइटी. सो नेक्स्ट इज किंग ऑफ ब्रॉमडिंग-डैंग, एंड that is very wise, wisdom, moral person, practical person, and had a very good common sense as a character. Next is satire, always represented in this novel through political parties, human pride, hypocrisy of the society. People are very hypocritic, like they are not adjusting. Even the people is very short and even it is very big. So here is very much corruption through the religious purposes in this novel, and very much disputes. We have seen a very a very funny and mocking dispute here, that how the egg is going to be broke from a big end and from a small end, and through both the ways they had a team up
that is very satirical way how the Swift has shown the very useless, meaningless religious and political disputes that are even relevant in today's society. ये उस टाइम की बात है जब उन्होंने 1726 में ये लिखी थी, बट अभी भी दिस इज़ वेरी रेलिवेंट. सो ये जो पूरी नावल है, एक वॉयेज नहीं, लिलीपुट ही नहीं, सिर्फ बाकी की 3 वॉयजेस नहीं, बल्कि पूरी नावल ही गुलिवर्स ट्रैवल इज़ अ मास्टर पीस ऑफ सटायर एंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर राइटिंग इन योर एग्जामिनेशंस. Why Gulliver's Travel is very much important novel in 18th century literature, because it tells about not only a travel or adventure story, it tells the experience, how the real society is. It tells the political and social satire by Swift, and it is a study of human nature, कैसे लोग behave करते हैं even if you are good at something or not. और लास्ट में आपको भागना पड़ सकता है गुलिवर की तरह लिलीपुट में, ना ही भागना पड़े तो अच्छा है. नेक्स्ट इज़ स्विफ्ट यूजेस फैंटेसी टू रिवील द वीकनेसेस ऑफ द सोसाइटी. वो ये जो फैंटेसी दिखाते हैं कि एक जगह पे बहुत छोटे लोग हैं, एक जगह पे बहुत बड़े लोग हैं. सो इट्स जस्ट अ फैंटेसी जस्ट टू टेल अबाउट द वीकनेस ऑफ द सोसाइटी, कि सोसाइटी कहीं पे भी खुश नहीं हो सकती है. Now it is also relevant in today's life also. Now there are 3 symbols that are not only voyages and a character, but they are symbol too. How Lilliput represents the petty politics, narrow-mindedness and foolishness that is very common in this thing, that people are very small and at last he needs to escape and return to home. Brobdin Nang shows a very wise wisdom, practical morality, common sense and honest judgment related to that. Honest judgment किसकी बात हो रही है? जो उन्होंने यूरोपियन वेपन्स वॉर्स के बारे में बात करी थी, क्रिटिसाइज़ करा था किंग ने वहाँ के, तो it is telling about that thing. And Gulliver is a very human observer, the mirror of the real society had been shown, जो मैंने पहले भी शुरुआत में बोल दिया था. Thank you so much for watching till the end, and for upcoming DOSOL videos of any semester, please subscribe to the channel The Milestone Classes. Thank you.